Hello students, again welcome to all of you in the class of the physics. We were talking about the second chapter of the 12th class, that is current electricity. ਆਪਾਂ पढ़ लिया सी सेल की हुंदा है, EMF की चीज़ है ते टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की चीज़ है. Today we will talk about grouping of cells. Cells ने जो उन्होंने अलग-अलग तरीके नाल आपां जोड़ सकते हैं, उन्हां दी ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो आपां अज डिस्कस करांगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. तो सब तो पहला अपने कोल है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ध्यान नाल, मेरे को सपोज करो दो सेल्स लए ने मैं, दिस इज द फर्स्ट सेल, EMF E1 है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, तो सेकंड जो सेल है इसकी EMF E2 तो इंटरनल रेजिस्टेंस R2. ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ. ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਤੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਡ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਐਂਡਸ ਨੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਬਾਈ ਵਨ ਐਂਡ. ਕਲੀਅਰ, ਓਕੇ. ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਜਿਹੜੀ EMF ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ EMF ਮਿਲੇਗੀ, E1 ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ E2 ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ EMF ਮਿਲੇਗੀ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ EMF ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੋਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ EMF है दोवां दी इक्विवेलेंट EMF आ जाएगी, इन्हू मैं E इक्विवेलेंट लिखता, ते रेजिस्टेंस भी दोवां दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो आ जाएगी जिसनू मैं R इक्विवेलेंट लिखता. ठीक है जी. आ अपना A पॉइंट है, ये अपना C पॉइंट है. क्लियर. अच्छा, A पॉइंट इस दे विच देखो, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट. A पॉइंट ते मैं कोई पोटेंशियल सपोज कर लिया BA, B पॉइंट ते BB ते C पॉइंट ते VC. क्लियर. तो A पॉइंट ते पोटेंशियल BA, इधर ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਰਕਟ ਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਰਕਟ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ C ਪॉइंट ਤੇ पोटेंशियल BC. क्लियर. ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ. क्लियर. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜੋ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਤੇ B, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ BAB. ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, क्योंकि ये वाला A पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, हायर पोटेंशियल पे होएगा, सो इट इज BA माइनस BB. क्लियर. ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ BA ਮਾਈਨਸ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਟ ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਆਊਟ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ. ठीक है जी. इस तरह करंट ने जाना है. आप सपोज कर लेना जो करंट फ्लो कर रहे हैं सर्किट दे विच, दैट इज I. क्लियर. इस सर्किट दे विच भी आप करंट दी डायरेक्शन लगा देते हैं लाइक दिस. ओके है. ठीक है जी. अच्छा, आप गल कर रहे सी पोटेंशियल डिफरेंस, आप लिख रहे हैं दो पॉइंट्स दे विच, उसनू मैं नाम देता BAB, दैट इज BA माइनस BB. अच्छा, कितना होएगा देखो, कोई EMF कितनी लगाई है, ये आप लास्ट लेक्चर च बड़े अच्छी तरीके नाल सीखिया सी, तो थोड़ा जा रिवाइज करो. E1 EMF लगाई है, इत्थे ड्रॉप कितना हो जाएगा IR1, ਇਹਦੇ अंदर ही ड्रॉप हो जाएगा. तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस ਜਿਹੜਾ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली है, तो कितना आ जाएगा E1 माइनस IR1. इक्वेशन नंबर 1 देखो जी, क्लियर होई इक्वेशन इस सैल दी. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਆ B ਤੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस लिखਦੇ ਆ BBC. खुद देखो चेक करके की करोगे, पहला BB माइनस BC. ओके, कितना होएगा ये देखो, इत्थे ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ EMF ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ E2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ IR2. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ E2 ਮਾਈਨਸ IR2. क्लियर जी. ਇਹ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ. ओके, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ. मैथमेटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਥमेटिक्स 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ BA ਮਾਈਨਸ BB ਪਲੱਸ BB ਮਾਈਨਸ BC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E1 माइनस IR1
प्लस E2 माइनस IR2। क्लियर। अच्छा BB कैंसिल हो गया तो बेसिकली की रह गया BA माइनस BC, है ना जी। तो BA माइनस BC की चीज हो गया BA माइनस BC, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। तो मैं की लिख सकदा BAC। क्लियर हुई जी गल। BAC A ते C ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज BA माइनस BC ओके इज इक्वल टू E1 E2 ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਟ ਬਿਕਮਸ E1 plus E2 minus IR1 minus IR2 minus I common so it is R1 plus R2। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾਤੀ। ਕਲੀਅਰ ओके अच्छा ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਇਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਰਕਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀਏ। ਇਹੀ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ A ਤੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ VAC दैट मीन्स BA माइनस BC। क्लियर। तो कितना आएगा इस सर्किट तो जेकर आप देखिए एक सैल लग गया जिसकी EMF कितनी है इक्विवेलेंट माइनस करंट कितना फ्लो कर रहा है I ते रेजिस्टेंस कितनी है R इक्विवेलेंट। तो इत्थे कुछ ना कुछ वोल्टेज दे अंदर ही ड्रॉप हो जाना है, आप माइनस कर दिए दैट विल बी I into R इक्विवेलेंट। क्लियर। तो अपने को जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक होर इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4। हुण जे तुसीं ध्यान नाल देखो इक्वेशन थर्ड ते इक्वेशन फोर्थ सॉरी दोवें इक्को ही चीज नूं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए वाली इक्वेशन भी A ते C दा पोटेंशियल डिफरेंस दस रही है, ए वाली इक्वेशन भी A ते C दा पोटेंशियल डिफरेंस ही दस रही है। ओके तो आपां इस नूं दोवां नूं फ्रॉम 3 एंड 4 दोवां नूं इक्वेट करांगे जां कह लो जो कंपेयर करांगे पर तुसीं उन्हां नूं कंपेयर करो, कंपेयर दीस टू इक्वेशंस। तो जो तुसीं कंपेयर करोगे तुहाडे कोल की आएगा जिहड़ी इक्विवेलेंट EMF है ए वाली अपने कोल की आ गई E1 प्लस E2 ते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने कोल कंपेयर करन ते कितनी आ गई दैट इज R1 प्लस R2। तो इत्थों ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ EMF ਹੋਏਗੀ दैट विल बी द सम ऑफ दोस EMF। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ E1 plus E2 plus E3। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਸੈਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ n ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ equivalent EMF is equal to E1 plus E2 plus E3 and so on up to En। क्लियर होया जी। इस तरह आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो भी सीरीज दे विच की हो रही है ऐड हो रही है सिंपली R1 plus R2। जे 3 ਹੁੰਦੇ R1 plus R2 plus R3 ਤੇ ਜੇਕਰ n ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ R ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ R1 plus R2 plus R3 plus Rn। क्लियर होया। तो सीरीज दे विच इक्विवेलेंट EMF भी तुसी कैलकुलेट कर सकते हो ते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी तुसी कैलकुलेट कर सकते हो। एक चीज तुसी होर ध्यान रखनी है जेकर मान लो इत्थे दोवें सैल देखो पोलैरिटी सेम पोलैरिटी च ने, जे किसी सैल दी पोलैरिटी ओपोजिट हुंदी इस तरह हुंदा आ सैल E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ए वाला सेल EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 उस तरह A पॉइंट है ए B पॉइंट ए C सब कुछ सेम है जस्ट एक सेल नू पोलैरिटी ओपोजिट करती ओपोजिट लग्या होया है। तो हुण जेकर आपां कहिए इक्विवेलेंट EMF की होएगी जिहदा इत्थे ध्यान रखना इस केस दे विच इक्विवेलेंट EMF की होएगी E1 माइनस E2। क्लियर जी। जेड़ा सेल ओपोजिट लग्या हुण तुसीं माइनस च लै लेना E1 माइनस E2 ते R इक्विवेलेंट की होएगी वो नहीं माइनस करना वो सेम होएगा R1 प्लस R2। याद रखना रेजिस्टेंस दा कोई पोलैरिटी नहीं हुंदी, रेजिस्टेंस दा कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हुंदा। तो जदों भी रेजिस्टेंसेस सीरीज च लगियां ने किवें भी लग्या सैल ओदी इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऐड ही होएगी। बट जेडे सैल्स ने उन्हां दी EMF जो ओपोजिट लग्या तो माइनस भी हो सकती है। एक चीज होर रखो तुसीं बड़े चो छोटा माइनस करने की कोशिश करो। क्लियर। जिवें इत्थे E1 माइनस E2 है सपोज करो जे E2 बड़ा हुंदा आपां लिख दिंदे E2 माइनस E1 लिख दिंदे। एक छोटी सी एग्जांपल तुहाडे नाल शेयर करूंगा। सपोज करो जो ये सैल है इसकी EMF है 8 वोल्ट। क्लियर E1 ते E2 है जो अपने को लगी सपोज करो 5 वोल्ट। ठीक है जी। तो हुण जिहड़ी इक्विवेलेंट EMF आएगी आपां करांगे दैट इज E1 माइनस E2 दैट मीन्स 8 माइनस 5 वोल्ट कितना आ गया
3 वोल्ट। अच्छा जो ਇਹਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਰਕਟ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ EMF ਬਣਾਵਾਂਗੇ 3 वोल्ट आ गई। ठीक है जी, देखना ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ पोलैरिटी बनानी है वो ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ बड़ा होएगा जो ਜਿੱਤੇ ਆਏ कह लो ਜਿਹੜਾ विनर है ਉਹਦੇ वाली पोलैरिटी बनावांगे। ਹੁਣ 8 वोल्ट ਸੀ ਇਹ 5 वोल्ट ਸੀ 8 - 5 ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 3। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਵਿਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ पोलैरिटी बनानी है ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ EMF ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 3 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, ਹੁਣ मैं थोड़ा ਜਿਹਾ opposite करके दिखाना। जेकर मेरे को इस तरह ਹੁੰਦਾ मान लो एक सैल है E1 ਇਹਦੇ 5 वोल्ट है। ठीक है जी, दूसरा सैल ਜਿਹੜਾ opposite ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ EMF है E2 ਇਹ 9 वोल्ट है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ EMF ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ E2 - E1 ਬੜੇ ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। E2 - E1 9 - 5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 वोल्ट आ जाएगा। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਰਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 9 वोल्ट ਸੀ ਇਹਦੇ 5 वोल्ट ਸੀ। ठीक है, विन कौन होया 9 - 5 4 वोल्ट इहदी रह गई यह विन होया है तो पोलैरिटी में इहदे वाली बनानी है। ध्यान रखना है इस तरह बनावांगे फिर आपां जिहड़ी इक्विवेलेंट EMF है इक्विवेलेंट EMF 4 वोल्ट वो इस तरह बनावांगे। क्लीयर, इस तरह ना बना देना है। ध्यान रखना है जिहड़ी फाइनल तुसीं इक्विवेलेंट EMF दे विच जो सैल बनाओगे उसकी जो पोलैरिटी बनाओगे वो वाली बनानी है जिहड़ा सैल जिहड़ा हैगा विन होया है। क्लीयर, जिसदी पोटेंशियल जिसदी EMF ज्यादा सी वो वाली फाइनल इक्विवेलेंट च आपां उसनूं बनावांगे। क्लीयर हो गई गल। अच्छा स्टूडेंट्स हुण सपोज करो वी हैव n आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। n सेल्स ने आइडेंटिकल मींस की है हर एक दी EMF सेम है फिर एक दी इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। सो ईच ऑफ EMF E and each of internal resistance R and they are connected in series ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਤੀ कैपिटल R। क्लीयर, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰਕਟ ਹੈ। तो जेकर आप करंट देखिए करंट की डायरेक्शन की होएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो करंट विल फ्लो लाइक दिस इस तरीके नाल सर्किट च करंट फ्लो करेगा। तो हुण आपां देखदे हां पहली गल आपां देखदे हां भी सर्किट की जो टोटल EMF है इक्विवेलेंट EMF वो कितनी होएगी। आई थिंक यू कैन गैस ट्राई टू फाइंड आउट। देखो EMF सीरीज दे विच इक्विवेलेंट EMF आपां सिंपल एडिशन करदे हां E + E + E + E होएगा कितने टाइम्स होएगा n टाइम्स होएगा तो कितना बन जाना है NE। So NE is the equivalent EMF of this circuit। Clear? Now the equivalent resistance only equivalent internal resistance की गल कर रहे हैं मैं कितनी आएगी तो R + R + R + R सीरीज दे विच सिंपल ऐड करांगे आपां कितने टाइम्स होएगा n टाइम्स कितना आ जाएगा अपने कोल NR। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कड्डी आपां NE आ गई। पर जे मैं सर्किट दी टोटल रेजिस्टेंस देखा RT क्योंकि आप बाहर भी एक रेजिस्टेंस लगा रखी है R इस दे नाल सीरीज ही आएगी तो विच ऐड हो जाएगी NR + R। इट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। अच्छा हुण सर्किट दा करंट की हुंदा है जिन्नी टोटल वोल्टेज लगाई है बटे टोटल रेजिस्टेंस। हुण टोटल वोल्टेज है जो टोटल EMF है दैट इज NE। क्लीयर, ते टोटल रेजिस्टेंस कितनी है NR + R तो एक ही हो गया अपने को इस सर्किट का करंट हो गया। बड़ा सिंपल है, वेरी सिंपल। अच्छा हम कुछ स्पैशल केस आप डिस्कस करते हैं। इफ जो मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लै रहे हैं इट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस ये बहुत स्मॉल लगाई है फिर की होएगा तो इत्थे जिहड़ी इक्वेशन है इस R नूं आपां नेगलैक्ट कर दांगे बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल तो I की रह गया NE/NR n नाल n कैंसल कितना आ गया करंट E/R। हुण एक चीज देखो ध्यान नाल भी जे सर्किट दे विच इक्को ही सैल लग्या हुंदा फिर भी करंट कितना होना सी E/R। जे मैं 10 सैल्स लगाऊंगा 10 सैल्स तो 10E/10R फिर भी कितना रह गया E/R। तो एक गल तुसी माइंड दे विच रखनी है वेरी इंपॉर्टेंट इन सीरीज जेकर तुसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल यूज कर रहे हो तो सीरीज दे विच किन्ने भी सैल्स लगा लो तो बिल्कुल करंट वही होएगा जो एक सैल करके आएगा। इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल then current will be same whether you are using one cell or whether you are using 100 cells whether you are using 1000 cells in series current will be same E/R। so there is no benefit of using so much cells in series if external resistance is small। but if second case ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ second ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ external resistance is large very large in comparison to internal resistance ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ तो अपने को आ जाएगा I = NE/R।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ध्यान नाल जिहड़ा करंट है हुण वो नंबर ऑफ सैल्स ते डिपेंड करता है, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। जिन्ने सैल्स इंक्रीज करोगे थोड़ा करंट की करेगा, इंक्रीज करेगा। इफ वन सेल E by R, if you have 2 cells 2A by R, if you have 100 cells 100 E by R, so current will increase. So now in series, if external resistance is large, you can increase the current by increasing the number of cells. Clear? ओके हुण आपां चलदे हां पैरेलल कंबीनेशन वाल। सैल्स इन पैरेलल, तो दो सैल्स ने अपने कोल, वन ऑफ EMF E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सेकंड ऑफ EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देखो सैल्स दे दोवें एंड्स ने जिहड़े आपस दे विच कनेक्टेड ने, पॉजिटिव एंड्स ने जिहड़े वो भी कनेक्टेड ने, ते जिहड़े नेगेटिव एंड्स ने, इंटरनल रेजिस्टेंस इहदे अंदर ही हुंदी है, आपां नूं पता है। तो दोवें नेगेटिव एंड्स भी आपस कनेक्टेड ने, दोवें पॉजिटिव एंड्स भी कनेक्टेड ने। सो व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड फ्रॉम बोथ द एंड्स, देन द ग्रुपिंग इज कॉल्ड पैरेलल ग्रुपिंग। तो दोवें सेल्स पैरेलल दे विच ने, ए पॉइंट ते बी पॉइंट दे विच मैंने दो सेल्स कनेक्ट कीते ने पैरेलल दे विच। तो इहदा जो आपां इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करांगे है ना, ਉਹਦੀ कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट EMF होएगी ਜਿਹੜੀ सर्किट, जे इत्थे कोई ਆਪਾਂ सर्किट कंप्लीट करिए इसका पूरे ਦਾ, तो सर्किट ਨੂੰ इसकी कितनी EMF मिलेगी, जिसਨੂੰ ਆਪਾਂ इक्विवेलेंट EMF कहांगे, ਤੇ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहांगे पॉइंट A ਤੇ इधर पॉइंट B। ਇਹ ਆਪਾਂ फाइंड आउट करना है पैरेलल कंबीनेशन ਦਾ। अच्छा ਆਪਾਂ करंट्स बनाइए। सब तो पहला ਜਿਹੜੀ इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट्स। नाउ इट इज द पॉजिटिव टर्मिनल, सो करंट विल गो लाइक दिस। ठीक है, आप सपोज कर लेने इस वायर चो करंट जाएगा फर्स्ट सेल चो I1, तो सेकंड सेल चो करंट कितना जाएगा, आप सपोज कर लिया I2। इत्थे आके दोवें करंट्स ने आपस में मिल जाना है, तो कितना करंट हो जाएगा I। ओके, उसका जो भी इसका एक्सटर्नल सर्किट होएगा उत्थे करंट घूम के दोबारा इस साइड तो फिर एंटर करेगा कितना I। ठीक है जी, इस सेल नूं कितना जाएगा, जो इस सेल चो आउट होया सी उन्ना इस सेल नूं भेजना पएगा I1, ते इधर कितना जाएगा I2। क्लीयर हो गया जी। ये अपनी करंट्स दे एरोज हो गए। इत्थे भी आप बना सकते हैं करंट कितना होएगा, इट विल बी I1 प्लस I2, दैट इज बेसिकली I। ठीक है, हैगा कितना है I1 प्लस I2। क्लियर? ओके, हम एक चीज अपने माइंड दे विच क्लियर होगी, जो I है दैट इज I1 प्लस I2। एक इक्वेशन अपने कोल बड़ी सिंपल जी बन गई, बड़ी इजीली तुसी देख सकते हो, कुछ भी इस तरह का नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, नाउ तो देख के पता चलेगा भी आप करना की है। आप बेसिकली I1 कैलकुलेट करना है ते I2 कैलकुलेट करना है, ते दोवें वैल्यूज कैलकुलेट करके आप इस इक्वेशन च पुट करांगे, फिर अपने को कुछ बनेगा आगे जाके। ठीक है जी, तो आप I1 ते I2 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हुण जेकर मैं देखो A ते B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस देखा VAB, ठीक है जी, कितना होएगा ये VA माइनस BB। क्लियर? अच्छा, मैं इनू ए वाले पास चो भी कैलकुलेट कर सकता, ए वाले पास चो भी कैलकुलेट कर सकता। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज सेम रहता है, पाथ कोई भी होवे। पढ़िया ना तुसी? ओके, तो पहले ऊपर वाले पास चो आप देखते हैं की बनेगा BA माइनस BB। एक सेल लग गया, EMF कितनी है E1, उसके अंदर ड्रॉप कितना हो जाएगा I1 R1। क्लियर हो गया जी, ये आ गया अपने को। ओके, तो इत्थों आप जो वैल्यू कढ़ीए, अच्छा जो VAB है, A ते B दे क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है BAB, इनू मैं सपोज करना है V है, लेट अस सपोज आप सपोज कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है A ते B पॉइंट दे क्रॉस BAB है, वैसे उन्होंने को V कहता तो थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है जी, तो मेरे को V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 आ गया। क्लियर? तो इत्थों मेरे को जे मैं फाइंड आउट करना होवे IR1 कितना आ गया E1 माइनस V I1, हियर इज I1। ठीक है जी, I1 R1, तो I1 मेरे को I1 R1 कितना आ गया E1 माइनस V। तो इत्थों अपने को I1 निकल के कितना आ गया E1 माइनस V अपॉन R1। लो जी, अपनी I1 की वैल्यू आ गई जिहड़ी आपां इत्थे पुट करनी है। ठीक है जी, हुण सिमिलरली तुसीं ए वाले पाथ दा इक्वेशन लिख लो, उत्थों I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। लेट अस राइट, तो BAB उस तरीके नाल ही लिखांगे इन द सेम फैशन वी विल राइट हियर BAB BA माइनस BB। कितना आ जाएगा, EMF कितनी है E2 माइनस इंटरनल ड्रॉप कितना हो गया I2 R2 माइनस करता। ठीक है, इन्हों की सपोज कितना पोटेंशियल डिफरेंस नु B, तो V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। ओके, इथों मेरे को I2 R2 कितना आ गया, दैट इज E2 माइनस V। तो मेरे को I2 निकल के कितना आ गया
E2 माइनस बी डिवाइडेड बाय R2। लो जी ये अपने को I2 की वैल्यू आ गई, दोवें वैल्यूज आ गई, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तब इत्थे पुट करते हैं I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू E1 माइनस बी बाय R1 प्लस I2 की वैल्यू E2 माइनस बी बाय R2। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अच्छा इस जेकर आप फर्दर देखिए I इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। E1 बाय R1 E2 बाय R2 टर्म्स में अलग कर लिया, इत्थे की रह गया माइनस बी बाय R1 माइनस बी बाय R2, माइनस बी आप कॉमन ले लिया तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अच्छा हुण देखो आप इसका एलसीएम लेना है, तो जो एलसीएम लवांगे अपने को की आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। क्लियर? वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। माइनस बी इज द एलसीएम लो R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। ओके हुण आप इत्थों फाइंड आउट करना है V, तो V नूं एक साइड ते ले आओ, V वाली टर्म आप एक साइड ते ले गए R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 इज इक्वल टू E2 R2 sorry E2 E it is E1 sorry it is E1 E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 R2 okay minus I। ठीक है जी। हुण आपां इह वाली टर्म नूं इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो देखो की होएगा, ये मल्टीप्लाई इधर जाके जो होएगी तो इस नाल की होएगा, इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, तो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय की आ जाएगा R2 प्लस R1। ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस I नाल भी इस तरह होना, ऊपर चला जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1। क्लियर जी? तो ये अपने को इक्वेशन आ गई हुण पोटेंशियल दी। ठीक है जी। इक्वेशन नंबर अपनी पहला आप इक्वेशंस कुछ लिख चुके सी, दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक 2। क्लियर? तो ये अपने इथों फाइंड आउट की इक्वेशन, इस पूरे सर्कट तो इक्वेशन फाइंड आउट की है पोटेंशियल दी। क्लियर? ए ते बी पॉइंट दे विच जो पोटेंशियल आप सपोज किया सी बी वो इन्ना होएगा। हुण आप इक्विवेलेंट सर्कट तो फाइंड आउट करते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्कट ड्रॉ किया है, इत्थों जेकर आप फाइंड आउट करिए ए ते बी दे विच जो पोटेंशियल होएगा दैट इज BA माइनस BB। क्लियर? उस तरह BA माइनस BB इज इक्वल टू की आएगा अपने को इक्विवेलेंट माइनस इस दे अंदर ही जो ड्रॉप होएगा दैट इज I इंटू R इक्विवेलेंट। अच्छा जो BAB है आप कितना सपोज किया होया है V सपोज किया होया, तो इसनूं आपां लिख दांगे V, तो अपने को V की आ गया E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हुण दोवें इक्वेशंस वही चीज नूं रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये वाली इक्वेशन भी इस सर्किट नूं रिप्रेजेंट कर रही है, यदि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नूं ये वाली इक्वेशन भी जो इत्थों पर ड्राइव की वो भी सेम ही है, तो आप दोनों नूं कंपेयर करो। वी आर कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस। क्लियर? व्हेन यू विल कंपेयर देम यू विल फाइंड आउट E इक्विवेलेंट तुहाडे कोल कितना आ गया, E इक्विवेलेंट दैट इज E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। लो जी ये अपनी इक्विवेलेंट EMF की इक्वेशन आ गई। अच्छा जो देखो ध्यान नाल तुसीं हल्का जिहा मैथमेटिकल एडजस्टमेंट, मैं जो थोड़ी जी मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करते हैं तो इस तरह भी लिखा जा सकता है E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो देखो इन्हें सॉल्व करके देख लो, इन्हें सॉल्व करोगे E1 R2 E2 R1 बाय R1 R2 R2 प्लस R1 बाय R1 R2 R1 R2 R1 R2 कैंसिल, यही क्वेश्चन बनेगा। तो यही क्वेश्चन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इक्विवेलेंट EMF इस तरह भी लिख सकते हो तुसीं, यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस। क्लियर? हुण आपां गल करिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दी, इक्विवेलेंट EMF अपनी गल होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जी आपां कंपेयर करते हैं तो देखो अपने सामने की आ रहा है, जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज R1 आ रही है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा इसनूं भी जेकर मैं थोड़ा जिहा एडजस्टमेंट करा तुसीं की फाइंड आउट करोगे, मैं किवें लिख सकदा 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
1/r1 प्लस 1/r2। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा हुण अपने कोल m नंबर ऑफ सैल्स ने, आइडेंटिकल सैल्स ने जिन्होंने आप पैरेलल च कनैक्ट किया है। आइडेंटिकल सैल्स ने, सो EMF हर एक दी सेम है, दैट इज E, ते इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, दैट इज R, स्मॉल r। ते सर्किट दे विच आपां एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया, दैट इज कैपिटल R। ते उस तो बाद आपां करंट की गल करते हैं। देखो हर एक सैल का अपना करंट होएगा, कोई पॉजिटिव तो आउट होएगा, क्लीयर। हुण क्योंकि सारी सैल्स आइडेंटिकल नहीं, दा मतलब सब दा करंट भी की होएगा, सेम होएगा। कुछ भी उसकी वैल्यू होएगी वो सेम करंट होएगा। इत्थे आके सारे करंट्स ऐड हो जाएंगे तो अपने को टोटल करंट आप सपोज कर लिया बन गया I। ये करंट इस तरीके नाल जाएगा तो B पॉइंट ते जाके करंट ने फिर डिवाइड हो जाना है, तो जिन्ना करंट जिस सैल तो आया सी उन्ना ही वापस चला जाएगा। क्लीयर हुई गल। हुण आपां गल करदे हां सर्किट दी इक्विवेलेंट EMF की होएगी, क्योंकि सारी सैल्स आइडेंटिकल ने ते पैरेलल च वोल्टेज सेम रहिंदी है, आपां नूं इह वी गल पता है। तो इक्विवेलेंट EMF अपने कोल कितनी आ जाएगी, E। हुण आपां गल करदे हां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दी, क्योंकि सारियां इंटरनल रेजिस्टेंसेस पैरेलल च ने। इंटरनल रेजिस्टेंस है जिहड़ी ओहदी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पैरेलल दे विच रेसिप्रोकल दा सम होएगा, तो 1/r1 1/r2 1/r3। सो ये सेम ने अपने को, सब दी रेजिस्टेंस सेम है। सो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितने टाइम्स होएगा, ये m टाइम्स होएगा। m सेल्स ने अपने को m टाइम्स होएगा। सो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r 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 n टाइम्स है, तो कितना बन गया, m/r बन गया। तो इसका मतलब अपने को की होया, r इक्विवेलेंट अपने को कितनी आ गई, दैट इज r/m। क्लियर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपनी कितनी आ गई, r/m। इन्ना समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा आपां गल करते हैं टोटल रेजिस्टेंस की। ये तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई अपने को r/m, बट एक बाहरों भी तो रजिस्टर लग्या होया R, ये इस नाल सीरीज च आएगा सारियां नाल। तो जिहड़ी टोटल रेजिस्टेंस है दैट विल बी एक्सटर्नल जिहड़ी आपां R लगाई है प्लस R इक्विवेलेंट, दैट मीनस R प्लस R/m। ओके, हुण आपां देखिए सर्किट दा करंट की होएगा। करंट इज सेम फॉर्मूला, टोटल वोल्टेज जो भी मिल रही है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF कितनी मिल रही है, E, रेजिस्टेंस कितनी मिल रही है, R प्लस R/m। जेकर मैं इसका एलसीएम ले ला की बन जाएगा, it will be me/mr प्लस R। तो अपने को करंट होएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन दे विच, इहनूं याद रखना तुसीं। अच्छा ये भी मैं कुछ केस ले रहा, केस 1 की है, जेकर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है MRA जो फैक्टर इट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये फैक्टर बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है, तो फिर मैं की करूंगा, इत्थे इसनूं नेगलैक्ट कर दूंगा, तो मेरे को करंट की रह जाएगा ME/R। क्लियर, ये करंट होएगा। अच्छा देखो एक चीज ध्यान नाल, इत्थे जो करंट है ये नंबर ऑफ सैल्स पे डिपेंड कर रहा है। जिन्ने मतलब तुम सैल्स ज्यादा यूज करोगे उन्ना करंट ज्यादा आएगा। इफ यू आर यूजिंग 1 cell E/R, if you are using 2 cells 2E/R, if you are using 100 cells it will be 100 E/R. So if the in parallel combination, if external resistance is very small, then your current depends upon number of cells. If you increase the number of cells, your current will increase. Clear हुई गल। सेकंड केस की है, जेकर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये वाला फैक्टर है बहुत स्मॉल है, बाहरली जो रेजिस्टेंस आप लगाई है दैट इज वेरी वेरी लार्ज, बहुत लार्ज है, तो हुण की होएगा, फिर ये वाला फैक्टर नेगलेक्ट कर देंगे, स्मॉल है, तो अपने को करंट की आएगा, इट इज ME/mR, M कैंसल, सो इट इज E/R। हुण देखो ध्यान नाल करंट अपने को E/R आ गया। इसका मतलब जो करंट है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स। इफ यू आर यूजिंग 1 cell in the circuit, then it will be E/R. If you are using 2 cells in the circuit, current will be same E/R. If you are using 100 cells in the circuit, still the current will be same E/R. So there is no much benefit of using 100,000 cells in parallel combination. If external resistance is large, then current will be same as of 1 cell E/R. Clear? ये गल समझ आ गई चंगी तरह? इन्हों अच्छी तरह लिखना है, कॉपी ते लिख के अच्छी तरह क्वेश्चंस नूं समझना है। ओके, थैंक यू।